Hello, good evening, everyone. How are you all? I hope everyone is doing great. So, let me introduce myself once again. My name is Pallavi, and we are learning chemistry here. So, our today's topic is metals and non-metals. Okay, so this is third part of metal and non-metal, and this belongs to class 10. So, we have learned about the physical and chemical properties of metals and non-metals. After that, we have yes, so physical and chemical property, that is what we have covered till now. Now we are moving forward and we are going to see more in this chapter. Okay, अभी हम और ज्यादा इस चैप्टर के बारे में जानेंगे तो क्या क्या है इस चैप्टर में आगे. तो बेसिकली आज हम लोग लर्न करने जा रहे हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर. Then we will learn about the chemical bond. Then we will learn about the ions, and after that we will learn about the type of bond and their properties. Okay, so this is what we are going to cover in today's session. So let us start by the first thing. And what is that? वो क्या है? तो वो है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल. तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल. नॉन मेटल और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो वो किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म करते हैं. जब मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे. ओके, और वो किस टाइप का कंपाउंड फॉर्म करेंगे. तो वो कंपाउंड फॉर्म करेंगे, सॉरी, आयोनिक कंपाउंड. ओके, वी विल लर्न अबाउट आयोनिक बॉन्ड क्या है, हम लर्न करेंगे अभी. But yes, first we are going to see that what happened when metal react with non-metal. Okay, so ionic compound. Then the second thing, reaction of non-metal with non-metal. जब non-metal और non-metal react करेंगे तो वो किस टाइप का बॉन्ड और किस टाइप का कंपाउंड फॉर्म करेंगे. तो वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे. कंपाउंड कैसा होगा? कोवैलेंट कंपाउंड होगा. ओके, so here I'm writing covalent compound and covalent bond. Okay, so that is the type of bond which non-metal and non-metal react together, they form. Okay, now the third point is reaction of metal with metal. Metal और metal react कभी नहीं करेंगे, ठीक है. metal metal से react नहीं करता. So here I'm going to write metal do not, sorry, metals do not react with metal. Reacts with metals. Okay, so what is chemical bond? What is chemical bond? So basically the force of attraction by which two atoms combine together, two or more atoms combine together to form a molecule. Okay, so that force of attraction क्या है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके वजह से एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं. So here I am writing the force of attraction okay, which links the atom, or we can say ions too. Okay, or ions to form a molecule. So we can take some example. Molecule. Okay, so what example we can say? We can say H2Cl2 HCl NH3. So these all are the molecules. Okay, so when two or more atoms chemically combine together, they form molecule. Okay, so that is about the chemical bond. Now we are moving forward and we are going to see more things here. So yes, we are going to see cause of chemical bonding. What is the reason behind that? So the atom combine with one another
to achieve the position of the noble gases or inert gases. Noble gases क्या है, उनकी outer most ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं. 8 इलेक्ट्रॉन, हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा और वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ओके, तो नोबेल गैसेस क्या करते हैं, वो किसी भी टाइप के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. क्यों? क्योंकि वो स्टेबल पोजीशन अचीव कर लेते हैं. दैट मींस एवरी एटम वांट टू फॉर्म ऑक्टेट, ओके, टू गेट द ऑक्टेट पोजीशन. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो रिएक्ट करते हैं. ओके, सो द काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज to achieve the configuration, electronic configuration of the noble gases. The electronic configuration of noble gases, and noble gases are also known as inert gas. So group 18 elements are known as noble gases or inert gases, in which so here I'm going to take some example of the noble gases, and that are the helium. So helium having only one cell, that is K cell. So that we know the K cell required maximum number of electron, that is 2. K cell में maximum number of electron कितना होता है? 2. That means maximum number helium के पास होता है electron का K cell में, जिसकी वजह से helium भी stable है. और helium क्या form करता है? Duplet. So except helium, all noble gases form octet. सिर्फ helium ही duplet form करता है. Okay. So here I'm taking the example of helium. Neon is the noble gas, then argon, then krypton, then xenon and argon. So these are the noble gases. Only helium form duplet and rest of all form octet. Okay. तो सारे क्या चाहते हैं, जितने भी एलिमेंट है, एटम है, वो क्या कर चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके जैसा, नोबेल गैसेस के जैसे. इस वजह से वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ओके, so the way by which an atom can achieve the inert gas electronic configuration, so कौन कौन वे है जिसकी वजह से, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे. ओके, so here I'm writing there are 3 ways by which they can achieve the configuration of the noble gases. So first one is the by losing one or more electron, and another way by gaining one or more electron, or more electron, and third one is by sharing the electron. Okay, so these are the 3 ways by which an atom get the electronic configuration of the noble gases. Okay, so let's move forward. What is iron? We have a question. Iron क्या है? Okay, so iron, that is an atom or a group of atom having positive and negative charge. ठीक है, ये atom, एक atom या atom का group है जिसके ऊपर positive and negative charge है. Okay, so here I'm writing atom or a group of atoms having positive and negative charge on it. And negative charge on it.
सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सो कैन वी टेक सम एग्जांपल? तो हाँ, हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि H प्लस, देन वी कैन से Na प्लस, Cl माइनस, then OH minus, that is group of atom. Then we can take the example of like OH minus, yes. So these are the example of the, and yes, some more example group of atom, that is, so these are the group of atom and atom which having the positive and negative charge. So these are known as ions. इनको हम क्या बोलते हैं? Ions बोलते हैं. Ions को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. First one is cation. Cation, that is positive charge ion. Okay, positive charge ion. Positive charge ion are known as cations. Okay, like Na plus, H plus, H3O plus. So these are cations. Okay, and what is anions? So anions, that is the negative charge ion, are known as anions. Okay, so here I'm writing negative charged ions are anions. And we can take the example of Cl minus, OH minus. So these are the example of negative charge ion, that is anion. Okay, so we are moving forward and we are going to learn more about that. And yes, in this slide, we are going to learn the electron dot representation. So what is that? What is electron dot representation? So the valence, basically the electron present in outermost orbit of an atom is represented in dot form. Okay, so electron in outermost orbit, or we can say cell also. ठीक है, outer जो atom के outermost orbit या cell में electron present होता है, उसको हम डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. Cell of an atom represented in dot form. In dot form. ठीक है, so we are taking example. ओके, तो हाइड्रोजन का लेते हैं. ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले सिंबल लिखेंगे हाइड्रोजन का और उस एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का. क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं. हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइक 2, 4, 6, and that is the electron dot representation of an atom. Okay, so now we are moving forward and we are going to learn about the formation of positive and negative charge. कैसे फॉर्म होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज? कैसे फॉर्म होता है पॉजिटिव चार्ज? सपोज जो मेटल्स होते हैं, मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं. क्यों? क्योंकि वो नोबेल गैस का पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं. ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, सॉरी, तो वो कैसा चार्ज फॉर्म करेंगे? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगे. सपोज ये सोडियम है. ठीक है, सोडियम क्या है? मेटल है. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Ec ऑफ सोडियम. Ec दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, ऑफ Na क्या होता है? 281. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास? 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. ये 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास. ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2-8 हो जाएगा. दैट मींस नियॉन के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो वो क्या करेगा? स्टेबल पोजीशन अचीव कर लेगा. तो इसके लिए सोडियम क्या करेगा?
इस वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, ठीक है, रिमूव कर देगा और ये फॉर्म कर लेगा पॉजिटिव चार्ज। क्या एक्वायर करेगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव आयन, दैट इज कैटायन, कैटायन फॉर्म करता है, ठीक है। ये जो एटम होगा सोडियम का, ये पेरेंट एटम होगा, और ये कौन सा एटम होगा? ये कैटायन होगा। जो साइज पेरेंट एटम का होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, साइज कैटायन का छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट एटम है उसमें वन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बट जो कैटायन है उसमें वन इलेक्ट्रॉन कम है, जिसकी वजह से उसकी साइज क्या होगी? छोटी होगी। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज आयन, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Ec ऑफ क्लोरीन दैट इज 2, 8, 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, दैट मीन सेल में, ठीक है। तो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या करता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन को कितने एटम चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, दैट मीन्स नियरेस्ट नोबल गैस का, आर्गन का। तो उसके लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने किसी से बोरो किया, दैट मीन्स कर्ज लिया इसी ने, इसने कर्ज लिया तो वो नेगेटिव में आ गया, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज हो गया उसके ऊपर। तो ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज आयन फॉर्म करेगा, ठीक है। क्लोरीन दैट इज पेरेंट एटम, yes, so that is parent atom and that is anion. So the size of, in this case, the size of anion will be bigger in comparison to parent atom. क्यों? क्योंकि parent atom के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, बट anion के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए क्या होगा? इसकी साइज बड़ी होगी, ठीक है। Now we are moving forward and we are going to see the type of chemical bond. तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया कि फॉर्मेशन कैसे होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन का, ठीक है। अब हम टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड देखेंगे। केमिकल बॉन्ड 2 टाइप का होता है। फर्स्ट क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो 2 टाइप, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है, और सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। सो आयोनिक बॉन्ड आर द केमिकल बॉन्ड, here I'm writing the chemical bond which is formed by losing or gaining the electron, or we can say by the transfer of electron from one atom to another. Okay, so ionic bond form when one electron transfer the electron, that means donate the electron, and one atom receive the electron. क्या होगा? एक एटम इलेक्ट्रॉन को देगा, डोनेट करेगा, दूसरा क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। तो ऐसे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? वो आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो क्या होता है? ये जनरली जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, ओके। सो लाइक कि हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम, सोडियम है, ठीक है। सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक्वायर करता है Na+ आयन,
और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बनाता है Cl- आयन। तो दोनों क्या करेंगे, सोडियम वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और दोनों मिलके फॉर्म करेंगे NaCl। ठीक है, दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, सोडियम क्लोराइड। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 288, पहले था 287, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले क्या था 281 और अब हो जाएगा 28। तो क्या हुआ, दोनों ने ऑक्टेट अचीव कर लिया, दोनों को कन्फिगरेशन मिल गया, नोबेल गैस का, सोडियम को मिल गया नियोन का और क्लोरीन को मिल गया आयरन का। दैट मीन्स दोनों स्टेबल हो गए और दोनों ने बॉन्ड फॉर्म करके क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर हम क्या अलग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल किसका लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 282। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मैग्नीशियम के पास, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या बना लेगा, Mg2+। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने देखा है 287। तो क्या करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ले लेगा, ठीक है, और बना देगा 288 और Cl-। बट एक इलेक्ट्रॉन और है मैग्नीशियम के पास, तो इस केस में क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 क्लोरीन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, 2 क्लोरीन को एक एक एटम अपना दे देगा और तब बनाएगा ये MgCl2। ठीक है, MgCl2। तो ये क्या हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव आयोनिक कंपाउंड। क्या होता है, तो जो बॉन्ड से बनता है, जो कंपाउंड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, so now we are moving forward and we are going to learn about the covalent bond क्या है। so covalent bond formed by the sharing of electron। ठीक है, so here I am writing the chemical bond which is formed by the sharing of ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। और ये बॉन्ड किसके बीच में बनता है, ये बॉन्ड बनता है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होगा, सॉरी ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ओके, तो इसका एग्जांपल हम लेंगे लाइक कि HCl। HCl हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। ठीक है, ये दोनों क्या बनाएंगे, फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, so on the basis of sharing of electron, covalent bond are classified in 3 parts, that means divided in 3 parts. First one is the single covalent bond, second one is double covalent bond, and third one is the triple covalent bond. So what is single covalent bond, so only one electron shared by both atom। ठीक है, दोनों एटम है वो क्या करेंगे, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। दैट मीन्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय देम, मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन एक करेगा, दूसरा एक करेगा, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होएगी। तो हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन और क्लोरीन जब आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो सॉरी कैसे बनाते हैं,
क्लोरीन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, क्लोरीन के पास। क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करता। क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सारे कुछ एटम है जो इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करते, तो वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, बॉन्ड, दैट मीन्स कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, ठीक है, तब वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो इसके लिए क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है और क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अगला क्लोरीन है ये, इसके पास भी कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, दोनों क्लोरीन मिलके ये एक इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, एक एक इलेक्ट्रॉन, सो लेट मी राइट लाइक दिस, ठीक है, लेट मी रेज दैट, ओके। तो क्लोरीन क्लोरीन ने क्या किया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अब दोनों ने ऑक्टेट अचीव कर लिया और दोनों स्टेबल हो गए, ठीक है। तो ये क्या बनता है, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल, दैट मीन्स एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। Here is that, yes। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लोरीन क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये क्या हुआ, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ डबल कोवैलेंट बॉन्ड, व्हेन टू electron shared by each atom, that means two pair of electron, that means total number of 4 electron are shared by both atom, okay। तो यहाँ पे क्या होगा, when two electron, that means 2 each, okay, by both atom, that means total number of atom, sorry, total number of electron is equal to 4, that means 2 each, that means 2 pair, okay। तो वो क्या होगा, डबल डबल बॉन्ड होगा। इसका एग्जांपल हम क्या लेते हैं, O2 का लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2। ऑक्सीजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो ये ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर दूसरा ऑक्सीजन है जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये दोनों ऑक्सीजन ये अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे इसमें, और तब क्या बनाएंगे, O2 मॉलिक्यूल, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये बॉन्ड कैसा होगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ओके। अब अगला एग्जांपल हम किसका ले सकते हैं, CO2 का ले सकते हैं। कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 4, दैट मींस 6, टोटल 6 एटम आर, सॉरी, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। सो एंड ऑक्सीजन का we know 2 and 6, तो ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन का 2 2 and, sorry, wait, let me erase that electron from this side, yes। So total 4 electron is here, which is present in outermost orbit. Now oxygen, oxygen having 2 2 and 2, 6 electron are present in outermost orbit. तो ये क्या करेगा, कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर करेगा, और ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर करेगा। तो क्या हो गया, ये इन्होंने, और कार्बन के कितने, कार्बन का फिर भी नहीं होता, तो कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम से करेगा, क्योंकि कार्बन को फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कार्बन क्या करेगा, एक और उससे ऑक्सीजन से शेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और ऑक्सीजन दे देती हूँ, ठीक है।
तो कार्बन ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया और ऑक्सीजन अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर किया। तो इस टाइप का बॉन्ड, सो लेट मी राइट इट लाइक दैट, 2, it will like that C. Okay, 1 2 3 4. So these are the shared pair electron. Okay, these are the shared pair electron. So I'm not writing it, I'm simply writing that oxygen. So now we can see the carbon having 2 to 4, and yes, so 4 for 8 electron, and let me clear that, not this one, and then it forms CO2. अब ये क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इनके बीच में बॉन्ड कैसा होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। ओके, ये CO2 हो गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सो दैट मीन्स द here the 3 pair of electrons here. Okay, the bond formed by sharing of 3 electron from each atom. That means 3 3, that means 3 pair. Okay, by sharing 3 electron by each atom. Okay, so here triple bond we can take the example of what, nitrogen molecule, nitrogen इसकी atomic number क्या होती है, 2, and it's 2 and of I think 3, helium, lithium, nitrogen, that means oxygen, nitrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon. Okay, so yes, so total 5 7, so total 5 electron are present in the outermost orbit of nitrogen, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास कितने हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ये क्या करेगा, N2 फॉर्म करेगा। तो N2 फॉर्म करने के लिए ये इन 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दोनों नाइट्रोजन मिलके ये 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और ये ऑक्टेट अचीव करके ये क्या बना लेंगे, N2 बना लेंगे। दैट मीन्स इनका बॉन्ड कैसा होगा, बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विल बी 1 2 3. So that is the triple covalent bond. Okay, so that is triple covalent bond. Now we are going to see the properties of ionic bond and covalent bond. Okay, so let us start with the properties of ionic compound or ionic bond. So basically the ionic compound are generally solid in nature. Okay, solid in state. क्यों solid होते हैं state में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर होने के बाद वो बॉन्ड बनाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होंगे, दैट मीन्स उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट विल बी वेरी हाई, स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होगा। दैट मीन्स जब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होगा तो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस नेग्लिजिबल के बराबर होगा, तो वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। इस वजह से जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली सॉलिड इन स्टेट। देन the high melting and boiling point, MP and VP, that is high melting and boiling point। क्यों, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा।
दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होगा, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हीट टू ब्रेक दैट बॉन्ड। तो बहुत ज्यादा हीट चाहिए उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका हाई होता है। ओके, द थर्ड वन इज यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। हम एग्जांपल ले सकते हैं, NaCl क्या बनाता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है। दैट मींस NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर में मिलता है। हम कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके देखेंगे क्या होगा, आराम से इजिली डिसॉल्व होगा, बट जनरली इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक, तो him generally insoluble in organic compound। लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, एल्कोहल होगा, इथर होगा, एसीटोन होगा, केरोसिन होगा। तो इन सारी चीजों में ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, लेकिन वाटर सॉल्युबल होगा। ठीक है। देन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि आयन फॉर्म करते हैं। ओके, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन, जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये स्प्लिट हो जाता है आयन में। जैसे कि NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस आयन में डिसॉल्व हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, आयन फॉर्म करेगा। तो आयन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। Now we are moving towards the properties of covalent compound की क्या क्या properties है। तो covalent compound solid form में भी होता है, liquid form में भी होता है, और gaseous form में होता है। ionic compound सिर्फ solid form में होता है, but covalent compound तीनों form में होता है। ठीक है। So we are moving starting from solid, like glucose जो होता है, glucose, sugar, that means cane sugar, यूरिया, ये सारे किस में होते हैं, या नैप्थलीन, आयोडीन, आयोडीन, ये क्या कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। ये सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से होते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में हम एग्जांपल ले सकते हैं बेंजीन का, ब्रोमीन, देन अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन सल्फाइड, सॉरी सल्फाइड, okay, carbon tetrachloride, bromine. So these are the example of the liquid covalent compound. Now gases covalent compound is methane, ethene, ethylene, chlorine. So these are the gases covalent compound. Okay, so now we are going to see more properties of the covalent compound in this slide. So covalent compound having low melting and boiling point. And why they having the low melting and boiling point? Because they made by the neutral electrostatic force of attraction. That's why they having the low melting and बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। ठीक है। यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं, बट देयर आर सम कोवैलेंट कंपाउंड व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। सो वी कैन टेक दैट द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। ग्लूकोज हो गया, सुगर हो गया, यूरिया हो गया, ये सब क्या है, वाटर सॉल्युबल होता है। या फिर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड लाइक
or we can say the exception is polar covalent compound. Compound like अमोनिया हो गया, HCl हो गया, अमोनिया हो गया, तो ये सारे क्या है, ये वाटर सॉल्युबल कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। द लास्ट वन इज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता? क्योंकि डू नॉट फॉर्म आयन। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? फ्री मोबाइल आयन होना चाहिए, बट ये आयन जब फॉर्म ही नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे? सो डू नॉट फॉर्म आयन, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Okay, so this is all about the ionic bond, ionic compound or covalent compound. Okay, so and we have learned कि क्यों वो form करते हैं ionic bond. Okay, chemical bond क्यों form करते हैं? तो इस सेशन में हमने लर्न किया केमिकल बॉन्ड क्या है, जो एटम होते हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, हमने पढ़ा टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, दैट इज आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड. Then we have learned about the properties of ionic and covalent bond. So this is all for today. We will learn more about metal and non-metal in our next session. Okay, everyone. So I hope everything is clear to all of you. Clear to all of you. So we will see next. We will see more in our next session. So this is all for today. Bye. Good night. Keep learning. Keep smiling.